मैं तेन कह रहा ना, तू ऊपर हो जा या मैनू ऊपर जान दे, मैं जावा ऊपर। ओ यार नैशनल वाले भी मंग रहे हैं लाइव, तू शुरू कर, तू शुरू कर। हाँ हाँ कर दे शुरू। किसान कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार विरोध ਜਿਹੜਾ ਉਹ जारी है और इस वक्त ਆਪਾਂ सैदोपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ और ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ उस ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਦੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਨ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਅੰਬਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਦੋਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਦੋਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੈਦੋਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜੀ ਜਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੈਦੋਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਬੈਰੀਗੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੈਦੂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। गुरु गुरु हाँ फड़ थले जा रहे मैं फड़ 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 ना देखिए देखिए आपको बर्बरता की तो तस्वीरें मैं दिखा ही रहा हूं, ये बर्बरता की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों पर पानी की बौछारें की जा रही है। इस वक्त मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पानी की बौछारें की जा रही है ताकि किसानों को सीधे तौर पर आगे बढ़ने से रोका जाए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सैदूपुर की हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अंबाला और पंजाब का बॉर्डर एरिया है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जहां पर लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है और विरोध प्रदर्शन के बीच में पुलिस की हर संभव कोशिश है कि किसी भी तरह से किसानों को रोका जाए। इस वक्त मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार किसानों पर दागने की कोशिश की जा रही है। लगातार मैं अपने कैमरामैन से भी कोशिश कर रहा हूं कि वो आपको पल पल की अपडेट जो है वो देता रहे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। और इस वक्त आपको जो मैं दिखा भी रहा हूँ कि किस ढंग से बड़ी मशीनरी जो है, ये यहाँ पर मशीनरी है जो पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है और उसी मशीनरी के माध्यम से इन किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी किसान जो हैं वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी भी किसान जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं और ये तस्वीरें हैं अंबाला बॉर्डर की, जहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। और जिस ढंग से मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस ढंग से पुलिस जो है बल प्रयोग करती, पानी की बौछारें दिखा। बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक हूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल मैं ठीक हूं और आपको ताजा हालात लगातार दिखा रहा हूं। जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और इस विरोध प्रदर्शन की ताजा तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहा हूं। सैदोपुर अंबाला बॉर्डर की ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा जा सके। बैरिकेटिंग को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी यहां पर किसानों के ऊपर
आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं और लगातार इसी तरह से यहां पर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन किसान जो हैं वो अभी भी टस से मस होते नजर नहीं आ रहे। अभी भी उनका प्रयास है कि किसी भी ढंग से वो आगे बढ़े और कहीं ना कहीं दिल्ली का घेराव करके रहे। हालांकि यहां पर जिस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर बैरिकेटिंग को हर संभव प्रयास किया जा रहा है तोड़ने का, लेकिन 3 लेयर में यहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई है पुलिस की तरफ से। 3 लेयर में यहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि किसान जो है आगे बढ़ते हुए नजर ना आए। पहले लेयर में जो सड़कों के किनारे डिवाइडर लगे होते हैं वो डिवाइडर लगाए गए हैं। दूसरे लोहे के बैरिकेड हैं जिनको संगलों के साथ जोड़ा गया है। तीसरी लेयर में फिर बैरिकेड हैं जिनके साथ संगल लगाई गई है और उसके बाद बड़े भारी वाहन जो हैं जिन पे बलडोजर लगाए गए हैं वो वाहन यहां पर लगाए गए हैं। और संभव कोशिश है, हर संभव कोशिश है यहां पर पुलिस की कि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लगातार पानी की बौछारें, इतना बड़ा पानी की बौछारों का सिलसिला जो है वो पहले देखने में नहीं आता। जो इस वक्त यहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है कि पिछले आधे घंटे से, लगातार आधे घंटे से यहां पर आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला जारी है, पानी की बौछारें करने का सिलसिला जारी है, लेकिन किसान अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। हर संभव प्रयास कर रहे हैं बैरिकेटिंग को तोड़ने का कि बैरिकेटिंग को तोड़ें और आगे बढ़ जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो सरकार की तरफ से हर एक मोर्चे के ऊपर, हर एक बैरिकेड के ऊपर तैनात किए गए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशों के बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पर किसानों पर दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी वाटर कैनन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। अभी भी पानी की बौछारें जो हैं वो लगातार जारी हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है किसानों को रोकने की, लेकिन पहले लेयर की जो बैरिकेटिंग थी उसको किसान जो है तोड़ चुके हैं। दूसरे लेयर की बैरिकेटिंग की भी तोड़ने की यहाँ पर तैयारी है, पीछे नहीं हट रहे। एक बड़ी चीज यहाँ देखने को मिली है कि यहाँ पर किसान जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हर तरह की जो बैरिकेटिंग है उसको तोड़ेंगे। और दिखा रहा हूं लाइव तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें, दूसरे लेयर की बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है। ये दूसरे लेयर की बैरिकेटिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। किसान आगू जो हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं और ये बैरिकेड, इन बैरिकेडों को संगलों के साथ जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं संगल लगाई गई थी, मोटी संगलों का इस्तेमाल किया गया था और ये फिर से पानी की बौछारें, यानी दोबारा से पानी की बौछारें सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीच में थोड़ा सा व्यवधान जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पानी की बौछारों की बात करें, आंसू गैस के गोलों की बात करें, वो मीडिया की तरफ भी आते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा शॉर्ट्स के अंदर व्यवधान जरूर पड़ेगा, लेकिन हर संभव कोशिश रहेगी, मेरी हर संभव कोशिश रहेगी, संभव प्रयास, पल की जानकारी दूं, एक एक तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करूं। और आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग तोड़ी है लेकिन किसान जो है पीछे नहीं हट रहे और ये बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है। भले ही यहां पर आंसू गैस के गोले क्यों ना दागे जा रहे हो, भले ही यहां पर पानी की बौछारें क्यों ना कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें इस वक्त सैदुपुर बॉर्डर की ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आंसू गैस के गोलों के बीच में, पानी की बौछारों के बीच में किसान जो हैं आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये एक बार फिर से पानी की बौछारें, एक बार फिर से पानी की बौछारें और कहीं ना कहीं कोशिश है कि किसी तरह से आगे ना बढ़ा जाए। एक बार फिर से हर संभव प्रयास कि आगे ना बढ़ा जाए। इस तरह के हालात जो हैं वो पहले देखने को नहीं मिलते, लेकिन आज किसानों को दबाने के लिए, आज किसानों को रोकने के लिए इस तरह की बर्बरता का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की सख्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से आज अन्नदाता जो है वो मुश्किल में घिरा हुआ है और आज उसके ऊपर किस तरह से बल प्रयोग किया जा रहा है ताकि वो दिल्ली में जाकर केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपने हकों की आवाज ना उठा सके। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जिस तरह से यहां पर बैरिकेटिंग अभी भी तोड़ी जा रही है, अभी भी आंसू गैस के गोलों के बीच में अभी भी
जो कह सकते हैं पानी की बौछारों के बीच में किसान जो हैं वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी अंकुश ये हाँ? बिल्कुल देखिए सेकंड लेयर की बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है, थर्ड लेयर की बैरिकेटिंग को तोड़ने का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए थे, ये बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। हालांकि अगर उस पार की बात करें तो जैसे ही कोई बैरिकेड तोड़ा जाता है, जैसे ही कोई रोड लोहे की तोड़ी जाती है, कोई लकड़ी तोड़ी जाती है, तो उसको इस तरफ फेंका जाता है, पुलिस वालों की तरफ ही फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस वाले भी अपना बचाव करते फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर पूर्ण रूप से जो बैरिकेटिंग की गई थी 2 लेयर की, जो बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे, जो यहां पर बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए थे, जो संगलें लगाई गई थी, उन संगलों को तोड़ दिया गया है और एक बैरिकेड बाकी है। तीसरी लेयर का अकेला बैरिकेड यहां पर बाकी है। उसके बाद ये बड़े बड़े ट्रक लगाए हुए हैं। ये ट्रक इसलिए लगाए गए हैं ताकि किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए नजर ना आए। और ये देखिए, ये लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, क्योंकि इन किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश। और ये आंसू गैस के गोले फेंकने के बाद किसान जो हैं वो लगातार जिस तरह से अब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन में आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो पुलिस की तरफ ही फेंके जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले जो हैं वो वापस पुलिस की तरफ फेंके जा रहे हैं, क्योंकि इस आंसू गैस के माध्यम से रोकने की कोशिश है। अभी भी बैरिकेटिंग जो है वो लगातार तीसरे लेयर की जारी है और तीसरे लेयर की बैरिकेटिंग भी यहां पर तोड़नी शुरू हो चुके हैं किसान। ये तीसरे लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो यहां पर किसान तोड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि पुलिस के जवान जो हैं वो यहां पर तैनात हैं। और ये एक और आंसू गैस का गोला बीच में, बिल्कुल यहां पर आंसू गैस का गोला दागा गया है और ये तीसरे लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए आंसू गैस के गोले जो हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ फेंके जा रहे हैं, क्योंकि जो आंसू गैस का गोला उधर जाता है उसका वापस खोल जो है वो वापस पुलिस की तरफ फेंक दिया जाता है। लेकिन तीसरे लेयर की यहां पर बैरिकेटिंग जो है उसको लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि आगे बढ़ा जाए, दिल्ली का घेराव किया जाए और केंद्र की मोदी सरकार को जताने की कोशिश की जाए कि आपने जो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून बनाए हैं, ये कानून कहीं ना कहीं किसानों के लिए हितैषी नहीं है। और इन्हीं कानूनों का किसान जो है वो बड़े लेवल पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रगड़ी होना जी, अगर रगड़ेंगे ज्यादा चलना हो जाएगी। हाँ। रगड़ना ना, अगर आंख में डला तो रगड़ना ना, रगड़ने जाना अपना।
हाँ हाँ दौड़ रहा है। ऊपर में जाइयो, इधर से आ, इधर से आ, इधर पानी मारेंगे, पानी। बिल्कुल यहीं खड़े होके, यहीं खड़े होके, इधर से आ। बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर अगर किसान जत्थेबंदियों की बात करें तो आज जिस तरह से पंजाब की किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करती नजर आ रही हैं। हालांकि कल हरियाणा की किसान जत्थेबंदियां जो हैं उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था और वो किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। करनाल के पास उन किसान जत्थेबंदियों को रोका गया है, लेकिन अंबाला बॉर्डर पर जो पंजाब की किसान जत्थेबंदियां, इन सभी को यहीं पर रोक दिया गया है। और जो इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स को आगे किया जा रहा है, फोर्स को आगे भेजा जा रहा है ताकि फोर्स आगे जाए और किसानों को रोकने की कोशिश करे। यहाँ पर अब फोर्स को भी आगे भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई थी। फोर्स इसलिए यहाँ पर तैनात की गई थी ताकि किसान अगर बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं तो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, लेकिन अब फोर्स को आगे किया जा रहा है ताकि किसानों को रोका जा सके आगे बढ़ने से। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है बड़े लेवल पर। किसान कानूनों के विरोध में यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है और इसी की पल पल की अपडेट दे रहा हूँ, इसी की पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, जहाँ पर ये संगलें जो लगाई गई थी, जो संगल्स लगाई गई थी, इनको तोड़ दिया गया है। चेन्स को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद अब जो बैरिकेड हैं वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर बाकी हैं, ये गाड़ियां जो हैं अब इनको हटाने की भी कोशिश की जा सकती है। और पुलिस जो है, पुलिस जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं कि सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो फिर उसको किस ढंग से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंट्रोल करना है। लेकिन हम हर तरह का संभव प्रयास कर रहे हैं, हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन की, इस किसान आंदोलन की एक एक तस्वीर जो है वो आप तक पहुँचाएँ। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको सैदोपुर से दिखा रहा हूं, जो कि अंबाला और पंजाब का बॉर्डर एरिया है। यहाँ की एक एक जो तस्वीर है वो आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पिछले तकरीबन आधे घंटे से आंसू गैस के गोले दागने का, पानी की बौछारें करने का सिलसिला जो है वो जारी है। और दूसरी तरफ से किसानों की बात करें, वो भी असंभव प्रयास कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की तरफ से भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है, यहाँ पर सरकारी मशीनरी जो है वो लगाई गई है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि रोक लिया जाए। बिल्कुल देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त सैदोपुर बॉर्डर की, जहां पर स्थिति जो है वो लगातार तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। जिस ढंग से
किसान जो हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ जो कूच करने की रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे थे, उनको हर तरीके से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। लगातार पानी की बौछारों का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला जारी है। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप स्थिति देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस और किसानों की बात करें तो यहां पर पुलिस और किसान जो है पूरी तरह से आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। पिछले आधे घंटे से लगातार यहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ने का सिलसिला जारी है, पानी की बौछारें करने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर किसानों का रुख साफ है। यहां पर जब तक किसान कानून जो कि केंद्र की तरफ से पास किए गए हैं वो कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस वक्त जो लाइव तस्वीरें मैं आपको सैदोपुर अंबाला बॉर्डर से दिखा रहा हूं, वहां पर इस वक्त जो बैरिगेटिंग की गई थी, यानी 3 लेयर में जो बैरिगेटिंग की गई थी, उस 3 लेयर की बैरिगेटिंग को तोड़ दिया गया है। अब पुलिस के जवान और किसान जो हैं वो आमने सामने हैं। पुलिस के जवानों ने ह्यूमन चेन बनाई है यहाँ पर, ताकि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। हाथ में बड़े बड़े लाठियां लेकर पुलिस के जवान जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं, क्योंकि इनको हिदायतें हैं कि किसी भी तरह से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये अपने उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कोविड-19 की सिचुएशन का हवाला देते हुए, कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए, कि किसी तरह का प्रदर्शन जो है वो हरियाणा में नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आपको मैं लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूं कि बैरिकेटिंग जो है वो यहां पर तोड़ दी गई है। बैरिकेटिंग को पूरी तरह से किसानों ने तोड़ दिया है और अब किसान जो है वो कोशिश करेंगे आगे दिल्ली की तरफ बढ़ने की। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसकी तरफ से बड़े बड़े डंपर जो हैं, जो बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि किसान जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर ना आए। तो ऐसे में अब इन बड़े बड़े ट्रकों को किस तरह से हटाया जाएगा, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रैक्टर आ चुके हैं, ट्रैक्टर ले आए हैं यहाँ पर किसान, ट्रैक्टरों के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं सैदोपुर बॉर्डर की, जहां पर ट्रैक्टरों के माध्यम से जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे उनको चैन लगाकर अब कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो एक साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसानों का काफिला जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। हालांकि यहाँ पर पिछले काफी देर से आंसू गैस के गोले जो हैं वो पुलिस की तरफ से दागे गए थे, पानी की बौछारें की गई थी,
लेकिन अब किसान जो हैं उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। हालांकि पुलिस की ह्यूमन चेन जो है वो किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। ह्यूमन चेन यहाँ पर लगाई गई है पुलिस की, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रैक्टर ले आए हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेड को ट्रैक्टर के साथ टो करके, ट्रैक्टर के साथ इस बैरिकेड को टो करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर को टो किया जा रहा है, ताकि टो करके बैरिकेड को आगे लेकर जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके और ये अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से दिल्ली की तरफ कूच कर सके। आपको दिखा रहा हूं मैं तस्वीरें, इस वक्त की जो तस्वीर है, ये बैरिकेड को यहां से उखाड़ दिया गया है ट्रैक्टर के माध्यम से, और ये बैरिकेड को खींच के अपने साथ लेके जा रहे हैं किसान। ट्रैक्टरों पर सवार हो चुके हैं और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में। जहां हम शंभू बैरियर की जो तस्वीरें कुछ देर पहले दिखा रहे थे, जहां पर हर तरह की बैरिकेडिंग को जो किसान है वो तोड़ चुके थे, और अब यहां पर सैदोपुर बॉर्डर, जो कि दूसरा अंबाला और चंडीगढ़ जो बॉर्डर के नाम से फेमस है, क्योंकि यहां से चंडीगढ़ या फिर पंजाब की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ती हैं। और एक बार फिर से पानी की बौछारें, एक बार फिर से यहां पर पानी की बौछारें की जा रही हैं ताकि किसानों को रोका जाए, लेकिन यहां पर जो हौसले हैं वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। हर तरह की बैरिकेडिंग को यहां पर तोड़ दिया गया है। पानी की बौछारें इतनी देर से इनके ऊपर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और बैरिकेडिंग को हर तरह से तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली का घेराव किया जाए और केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं उन कृषि कानूनों को एक सूरत में रद्द किया जाए या फिर उनको वापस किया जाए। और अगर आपको कोई इस तरह के कानून बनाने हैं तो उसमें किसानों की जो राय है उसको भी सम्मिलित करें और किसानों की मांग के अनुरूप कानून बनाएं, तब उसका विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर किसानों की मांग के अनुरूप कानून नहीं बनते तो फिर उसका इसी तरह से सड़कों पर विरोध जो है वो होता हुआ नजर आएगा। ये दर्शा चुके हैं किसान जो है वो, पंजाब के किसान लगातार जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये लाइव तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, जो लगातार जारी है। आपको विरोध प्रदर्शन की मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। उसको पता नहीं क्या ध्यान नहीं पे यार, उन्हें जान के थोड़ा किया खराब हो गया, हटाने में खिंचन लग गया सालिया, आधे में खिंचन लग गया। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो बड़ा एक ट्रक लगाया हुआ था, जो बड़ा ट्रक लगाया गया था, अब उस ट्रक को ट्रैक्टर के माध्यम से धकेलने की कोशिश की जा रही है। किसान जो हैं बड़े ट्रक को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, किसान जो हैं वो इस ट्रक को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस ट्रक को यहां से हटाएं, रास्ता खोलें और दिल्ली की तरफ कूच करें। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है, किस तरह से हौसले जो है वो पस्त होते नजर नहीं आ रहे और केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में जम के यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है बड़े लेवल पर किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि ट्रक को हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस ट्रक के ऊपर बुलडोजर भी लगाया गया था, प्रशासन की तरफ से बुलडोजर रखा गया था ताकि इतने बड़े ट्रक को ना खिसकाया जा सके, लेकिन अब किसान जो हैं वो इस ट्रक पर बैठ चुके हैं। ट्रैक्टर के माध्यम से इसको टो करके ट्रक को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे बढ़े और दिल्ली की तरफ कूच करते हुए विरोध प्रदर्शन करने का काम करें। जी, ट्रक की स्टार्ट हो गया। देखिए, पुलिस को हिदायतें थी कि बैरिकेडिंग को ना तोड़ने दिया जाए, पुलिस को हिदायतें थी कि हर तरह से संभव कोशिश की जाए, चाहे आंसू गैस के गोले मारे जाएं, चाहे पानी की बौछारें की जाएं, लेकिन अब पुलिस फोर्स जो है वो पीछे हट चुकी है क्योंकि एक बड़ा हुजूम है। हालांकि अभी भी बैरिकेडिंग जो है उसके ऊपर पानी की बौछारें जारी हैं, अभी भी ट्रक को खिसकाने का सिलसिला यहां पर जारी है, हटाया जा रहा है, पुलिस फोर्स आ चुकी है और कहीं ना कहीं इनको पीछे करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पानी की बौछारों का सिलसिला जारी है और ट्रक को खिसका रहे हैं किसान जो है वो ट्रक के ऊपर बैठ चुके हैं और ट्रक को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रक को खिसकते ही, इस ट्रक के हटते ही रास्ता जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से, और बिल्कुल ये ट्रक स्टार्ट भी हो चुका है और उसको हटाने की कोशिश की जा रही है कि यहां से इस ट्रक को हटाया जाए और उसके बाद सीधे तौर पर दिल्ली की तरफ किसान जो हैं वो अंबाला से आगे बढ़ते हुए नजर आए। इस वक्त अंबाला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको मैं जो दिखा रहा हूं क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन, और ये ट्रक जो है इसको वापस लिया गया है, ट्रक जो है उसको पीछे खिसका दिया गया है। पानी की बौछारों के बीच में
पानी की बौछारों के बीच में इस ट्रक को किसान जो है पीछे खिसका चुके हैं, यानी रोड जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा अब, और यहाँ से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर विरोध जारी है, और जिस तरह से पहले शंभू बैरियर जो है वहां पर सभी तरह की बैरिकेटिंग को तोड़ा गया, अब यहां पर भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर भी रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया गया है ताकि किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहां पर तैनात है। हालांकि इनको अगले ऑर्डर क्या आएंगे, किस तरह के निर्देश होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहां से किसानों का मार्च जो है पानी की बौछारों के बीच में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आंसू गैस के गोलों में ये प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। जी हेलो हेलो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 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 देखिए, किसान जो है, किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान जुड़ चुके हैं, किसान एकता के नारे लग रहे हैं। बैरिकेटिंग तोड़ दी, हर तरह की बैरिकेटिंग को यहाँ पर तोड़ दिया। अब आगे की रणनीति क्या है? दिल्ली की तरफ कूच, दिल्ली जाना ही जाना जी, जो मर्जी हो जाए, दिल्ली के पीछे हटते नहीं होना। मोदी ने पूछना कितने बैठे उत्थे पहुंच जाएंगे। मोदी ने सारे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया, समझे कि नहीं? और मांग क्या है कि ये कानून जो है पंगा गलत ले लिया। मोदी ने समझा कि बिहारी है, ये बिहारी नहीं, ये पंजाबी है, ये पंजाब है, पंजाब, पंजाब। किसान जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किसानों का काफिला जो है आगे बढ़ चुका है। और ये तस्वीर है जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बैरिकेटिंग तोड़ दी गई, हर तरह की बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है, और उसके बाद किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से अंबाला सैदोपुर बॉर्डर जो है उसको किसान पैदल ही बैरिकेटिंग को तोड़ दिया इन्होंने, और उसके बाद पैदल ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें, दिल्ली की तरफ किसानों का कूच जो है वो सैदोपुर बॉर्डर से शुरू हो चुका है। सैदोपुर बॉर्डर से किसान जो है वो अब दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। सारे के सारे जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो धरी की धरी रह गई हैं, और अब किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार आपको कोशिश कर रहा हूं मैं शॉर्ट्स दिखाने की। यहाँ पर पैदल ही अंबाला की तरफ मार्च शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं अंबाला और पंजाब बॉर्डर की, सैदोपुर बॉर्डर की, जहां पर बैरिकेटिंग तोड़ दी। बैरिकेटिंग तोड़ के अब आगे की तैयारी क्या, आगे की क्या रणनीति? आगे की दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे, मोदी को हिलाएंगे, जाके मोदी पर बुलावांगे, हल्ला बोलांगे, पंजाब के किसान ऑर्डीनेंस वापस करा के हटांगे। धक्का कर रही है खट्टर सरकार, जद के हमारे भाइयां हरियाणे वाले भी, हर पंजाब यूपी बिहार समझा पंजाब नूं मोदी ने हर मित थान है। इन्हें न्यूदा पाया 31 का ट्रैक्टर ट्रालियां आ गई, यानी पहला जो बैरिकेड था वो तोड़ दिया, पहला बैरिकेड तोड़ दिया और दिल्ली की तरफ कूचते आ रहे हैं। क्या कहेंगे? भीगे हुए हैं, पानी की बौछारें इतनी हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए। सारी अखा में बड़ी कोई फर्क नहीं पैंदा। खट्टर साहब नूं शर्म चाहिदी आ भी तू साडे मेरी रिश्तेदारी, मेरी जमीन आ शाहबाद एरिया में 30 किले, उन्होंने शर्म चाहिदी आ भी मेरे मारी वोटां भी आउं हरियाणे के विच, मेरे 10 सरपंच हरियाणे के विच, अगे नूं वोटियां नहीं पैण दिंदे खट्टर सरकार नूं। बीजेपी का पट्ठा बैठावांगे, पंजाब सारा आवागा। बिल्कुल बिल्कुल, अब चुनाव तक स्थिति जाती नजर आ रही है, यानी चुनाव में भी बीजेपी का विरोध होगा। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से अब ये काफिला जो है ये दिल्ली की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे की कड़ी नोकझोंक हुई, कड़े यहाँ पर इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए थे, लेकिन सभी की सभी बैरिकेटिंग तोड़ दी गई। सभी के सभी रास्ते जो हैं वो क्लियर कर दिए गए, और उन रास्तों को क्लियर करके किसान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। उन रास्तों को
उन रास्तों को तोड़कर किसान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें ट्रैक्टर लेकर आगे की क्या रणनीति है? दिल्ली जाएंगे, सीधा जाएंगे, मोदी की हिक्मा गोड्डा ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर जो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें की, ये किस तरह से देखते हैं सरकारों के इस तरह के तानाशाही रवैये? तानाशाही है सरकारों की। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे नौजवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद। ये पंजाब का यूथ है, सारा यूथ है, सारे यूथ ने अपनी जिम्मेवारी ले ली। अज यूथ ने सारा काम बैरीगेट जो चक्के सारे यूथ ने चक्के, बूढ़े मारे पीछे हैं। अगा नौजवान पंजाब के सारे अगा जो मर्जी कर ले, अथरू गैस छोड़ ले, पानी दिल्ली जाके हटेंगे। बिल्कुल दिल्ली जाके हटेंगे ये कह रहे हैं किसान। और जिस तरह से आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं जिसमें किसानों ने बैरिगेटिंग तोड़ दी है। और एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा हूँ ये आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ पर पानी की बौछारें, गिल्ले हो चुके हैं कपड़े भी यहीं ऐसे ही सुखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली जाएं, केंद्र की मोदी सरकार को झुकाने की कोशिश करें। पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, पुलिस की उसके बावजूद भी बैरिकेटिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश। सर ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, और ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ? बिल्कुल मजबूरी, ये बड़ी मजबूरी है कि किसान पंजाब का जो है पहले ही कर्ज के तले दबा हुआ है, पहले ही कर्ज का बोझ उसके ऊपर बहुत है। पंजाब का किसान लगातार सुसाइड कर रहा है, लेकिन इस सुसाइड पर भी केंद्र की मोदी सरकार संजीदा नहीं है। इनका कर्ज तो क्या माफ करना है, इनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का लाभ तो क्या देना है, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया, सारे के सारे ये युवा जो आगे हैं भीगे हुए हैं पानी में पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हौसले पस्त नहीं हो रहे। पुलिस की सख्ती के बाद भी हौसले पस्त नहीं हो रहे। ये भी सूचना मिल पा रही है कि आगे भी कई जगह बैरिकेटिंग है। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਕਾਊ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਿਆ ਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਕਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ पिल्ला इसनू क्या कहते अभी कुत्ता लोभी कुत्ता कह सकते हैं। देखो बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। कोई भी बैरिकेटिंग क्यों ना की हो उसको तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक लेयर की बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के विरोध करेंगे। आगे भी मैं लाइव दिखा रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो ना दिखाऊं। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ही बातचीत करूंगा। इतनी पुलिस ने इतनी सख्ती की, आंसू गैस की गोले दागे गए, पानी की बौछारें की गई, और उसके ऊपर जो अन्नदाता है देश का, जो पेट भरता है देश का, उस किसान के ऊपर आज इस तरह की बर्बरता मैं खुद देख के आया हूं और सारी चीज आपको लाइव दिखा रहा हूं। टीवी के ऊपर जनता देख रही है एएनबी न्यूज के माध्यम से कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार जो है वो अन्नदाता के ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती कर रही है। क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमारी जो आपने इंटरव्यू ली है आम जनता के सामने होनी चाहिए, ना कि यही हो वहाँ बिल्कुल बंद हो, क्योंकि कोई भी ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਊ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ उन्हें पर जो खबर नहीं देंगे, मोदी की खबर देंगे, लोगों की खबर नहीं देंगे। हम आपके साथ हैं, आपकी खबरों का प्रसारण प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। पता लगा आज तक हो गया। आज 100 रुपए जो 73 रुपया लोन एक्चुअली जिन्ना भी लोन देंगे है 100 रुपए जो 73 रुपया लोन जो एनपीए इंडस्ट्रीज कर देंगे बड़े, लेकिन किसानों को MSP नहीं दे सकते, जबकि किसानों का NPA सिर्फ 11% और बैलेंस जो NPA लोगों का है।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਔਰ यूपी ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ खुशहाल किसान है। बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के खुशहाल किसान हैं, लेकिन कर्ज के बोझ तले ये किसान भी दबे हुए हैं। अपने हकों की लड़ाई बुलंद करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ट्रैक्टरों का काफिला जो है अब दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टरों पर सवार हो चुके हैं और अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा साजो सामान साथ में है। क्या कहेंगे? किसान एकता जिंदाबाद पूरी तरह से गिले हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा परिश्रम करना पड़ा, यहाँ पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी बैरिकेटिंग को तोड़ के। आगे भी कहा जा रहा है कि बैरिकेटिंग इसी तरह से पुलिस लेके किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आगे भी रणनीति इसी तरह से जारी रहेगी, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पैदल और ट्रैक्टरों पर किसान जो हैं दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको इसी तरह से देते रहेंगे जी। बिल्कुल देखिए दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह के हालात होंगे अब वही देखना बाकी है। हालांकि अभी सूचना ये भी मिल पा रही है कि अंबाला की बैरिकेटिंग तो तोड़ दी है, लेकिन आगे भी पुलिस की तरफ से हरियाणा में कई जगह पर बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि कल मोहड़ा से जो हरियाणा के किसान चले थे उनको करनाल में रोका गया, उनको कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र में रोकने की कोशिश की गई। और आगे भी हर जैसे जिला जो है वो क्रॉस किया जाता है, उस जिले के बाद बैरिकेटिंग जो है वो किसानों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन हर तरह की बैरिकेटिंग को तोड़ के किसान जो हैं वो अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कह दिया गया है कि किसी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे, किसी तरह से कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे, लेकिन पुलिस जहां पर रोकेगी उस बैरिकेटिंग को जरूर तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ बुजुर्ग नेता भी यहां पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं किसानों की। आज किस तरह से इतनी उम्र हो गई किसानों के विरोध प्रदर्शन को हमने भी देखा, आप भी कई विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस तरह का रवैया कभी देखने को हमें नहीं मिला कि कहीं ना कहीं एक प्रदेश की सीमा को दूसरे प्रदेश की सीमा जो है सील कर दे और किसानों को अपनी बात तक ना रखने दी जाती है। ਇਸ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम कहा था भी एक दिन का व्रत रखना पड़ेगा कि देश के बीच अन्न का कमी थी। जे असी अन्न ज़्यादा पैदा कर दिता कि सानू अन्न ज़्यादा पैदा करने दे ये इल्जाम मिल रहे हैं। बिल्कुल शाबाशी तो क्या देनी है देश के अन्नदाता को, इस अन्नदाता को शाबाशी तो क्या देनी है, इस अन्नदाता के परिश्रम को कहीं ना कहीं तवज्जो तो क्या देनी है। इसके ऊपर आज लाठियां बांधी जा रही है, पानी की बौछारें की जा रही है, पानी बाज रहे जी। 7 रोज का हर हफ्ते बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भी व्रत रखेगा देश। उसके बाद 7वें दिन का व्रत लगे रखन भी देश के बीच अन्न की कमी थी। जद टंडोरा पिट्टे कराते 1957 के बीच भी। बिल्कुल ये दर्द है, ये किसान का दर्द है जिसको बयां कर रहे हैं, ये किसान का दर्द है और ये दर्द ही सामने आ रहा है और आज इसी वजह से किसान सड़कों पर है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं आपके कैमरे राਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਤ ਹਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜਿਆ, ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਰੀਗੇਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਬੈਰੀਗੇਟ ਟੁੱਟੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਣੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਬੈਰੀਗੇਟ। बिल्कुल बैरिगेट सरकार को सोचना होगा कि लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हम बैरिगेट को इसी तरह से तोड़ते रहेंगे। और जिस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रालियों के अंदर ये किसान जो हैं दिन रात दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आएंगे, दिन रात आगे बढ़ते नजर आएंगे। कहाँ से आए हैं? सिंबली दे कहाँ पड़ता है? ये पंजोखरा साहब के अलावा जी, पंजोखरा साहब के पास। तो यहाँ पर पूरा मन बना के आए हैं कि जब तक केंद्रीय कानून वापस नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। हाँ जारी रहेगा जी, हाँ जारी रहेगा जी, जारी रहेगा जी पूरा। लेकिन ये पुलिस की जो सख्ती थी, ये पुलिस की जो सख्ती थी, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, इनसे क्या हौसले पस्त तो नहीं हो रहे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हौसला और बुलंद हो गया हमारा, हौसले पूरे दलेर होए, दलेर यानी पुलिस की सख्ती जितनी होगी
उतने हौसले बढ़ेंगे, उतने विरोध प्रदर्शन जो है वो मजबूत होंगे। हाँ जी, क्या करें? उतना ज्यादा विरोध आ जितना रोकांगे उतना ज्यादा चक देंगे काम। बिल्कुल उतना ज्यादा होगा। गिले हैं, बिल्कुल गिले हैं, पानी की बौछारें हो चुकी हैं, ये पैर पे चोटें लग चुकी हैं, लेकिन चोटों के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये चैन वो चैन है जो पुलिस ने बैरिकेडिंग पे बांधी थी, लेकिन ये चैन अपने साथ लेकर आए हैं, ये चैनें साथ ले आए हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मोदी को जानी चाहिए आवाज भी किसानों का क्या हाल हो रहा है, किसी की लत्ते पर क्या बात, पानी की बिछारे मारी जा रही हैं, गैस बम मारे जा रहे हैं, किसानों का इतना बुरा हाल है, बैरिकेड तोड़कर किसान कामयाब होकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली की तरफ बढ़े जा रहे हैं और लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त मैं अंबाला और जो कह सकते हैं पंजाब बॉर्डर है उसकी दिखा रहा हूं, जहां पर किसानों के काफिले अब तैयार हैं दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने को लेकर। जी बिल्कुल देखिए किसान जो है अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। यहाँ पर जो ट्रक लगाए गए थे उनको हटा दिया गया और अब किसान जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुलिस की तरफ से यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि जब किसानों ने एकता की और मन में ठाना कि उन्होंने दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना है तो फिर ये इंतजामात उनको नहीं रोक पाए। और उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अब किसानों के काफिले जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से, क्योंकि 6-6 महीने का राशन जो है वो इन ट्रैक्टर ट्रालियों में किसान अपने साथ लेकर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि अगर कहीं पर भी पुलिस और ज़्यादा सख्ती करती है और इनको रोकने की कोशिश करती है तो फिर इनके हौसले पस्त ना हो और ये वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन जो है उसको शुरू कर दे। लेकिन पहले लेयर की बैरिकेडिंग यानी अंबाला बॉर्डर के ऊपर जो बैरिकेडिंग थी उस पूरी की पूरी बैरिकेडिंग को तोड़कर अब किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे भी हरियाणा में कई जगहों पर सूचना मिल पा रही है कि वहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि इन किसानों को रोका जाए। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रालियों पर दिल्ली चलो के नारे के साथ किसान जो हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीने से किसान जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, कई किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। और ये विरोध प्रदर्शन पानी के टैंकर, पीने के पानी के टैंकर भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि अगर इनको कोई पानी की दिक्कत आती है, कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो फिर इनके काफिले जो हैं वो पीछे ना पलटें बल्कि आगे ही बढ़ें और दिल्ली का घेराव करें।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो परेशानी है किसानों को आई वो ये बैरिकेड, ये जो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे पुलिस की तरफ से ताकि किसान जो है वो आगे ना बढ़े, तो ये पत्थरों को सबसे पहले धकेला गया और उसके बाद जो ट्रक लगाए गए थे उनको एक साइड में किया गया और अब किसानों के काफिले जो हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कारों में, ट्रैक्टर ट्रालियों पर, जनरेटर साथ में लेकर, राशन साथ में लेकर किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के अंदर मौजूद है, क्या कहेंगे? एक लेयर की बैरिकेटिंग तो तोड़ दिया, आगे भी कई जगह पुलिस ने बैरिकेटिंग की है। बिल्कुल जी, हम कहीं भी नहीं रुकेंगे, हम सीधा जाएंगे, जो मर्जी हमारे पर हो, जो मर्जी जितनी मर्जी सख्ताई करें हम वहीं पे जाएंगे, जाकर ही खड़ेंगे, चाहे जो मर्जी टाइम लग जाए, जितना मर्जी समय लग जाए। सरकारों के इस रवैये को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि किसान पेट भरने वाला, देश का अन्नदाता, लेकिन आज उसी अन्नदाता के ऊपर इस तरह से बल प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह से पानी की बौछारें की जा रही है, लाठियां बांधी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बहुत गलत धक्का कर रही है ये सरकार, जो है बहुत गलत कर रही है, किसान को, अन्नदाता को, जो सभी लोगों का पेट भर रही है, बहुत गलत कर रही है। हाँ जी, गलत कर रही है सरकार, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता, किसान देश का पेट भरने वाला, आज उसी के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह से बल प्रयोग किया गया उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब बैरिकेटिंग तोड़ के ये किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रालियों के बीच में इन्होंने अपना सामान भी रखा है, गद्दे भी रखे हुए हैं, यानी जहां पर भी धरना होगा वहीं पर रुक जाएंगे, जहां भी पुलिस रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि यहां पर बैरिकेटिंग तोड़ दिया, आगे की क्या रणनीति बनाई है? ਅੱਗੇ की रणनीति ਜਿਹੜੇ अपना बुजुर्ग हैं वो करेंगे जीते, सोच के क्या आए हैं? अगर सोच कर दिल्ली चलेंगे। हाँ, कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक ये कानून वापस नहीं होते। जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देख सकते हैं पूरा सामान लेकर किसान जो है वो घर से निकले हैं, यानी सीधे तौर पर अगर 1 महीना लगे, 2 महीने लगे या 6 महीने लगे, जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तब तक ये इसी तरह से डटे रहेंगे और अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जी, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि इनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसी वजह से इनको आज कहीं ना कहीं अपनी फिक्र नहीं है, अपनी जान की फिक्र नहीं है। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भले ही इस आंदोलन में इनको कोई कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, पुलिस की तरफ से लगातार बल प्रयोग किया गया, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन उसके बाद भी हौसले पस्त होते हुए नजर नहीं आए। हौसले जो हैं वो बरकरार हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अब आगे बढ़ने की रणनीति जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि अंबाला की बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है। सैदोपुर में जो बैरिकेटिंग की थी इसको तोड़ के किसान अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि आगे भी जो बैरिकेटिंग रहेगी उसको तोड़ेंगे। आगे की रणनीति क्या है? दिल्ली पहुंचूंगे
मोदी दरबार दिल्ली पहुंचेंगे, बस ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗेंगे, ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵੱਈਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਮੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਏਂਗੇ, नहीं चुकूगा फिर झुकाएंगे। क्या रणनीति है? रणनीति बाद दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंच के अपना शांतिमय गलबात करेंगे। बिल्कुल, ये चीज एक बड़ी देखने को मिली है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से भले ही इन किसानों के ऊपर पानी की बौछारें क्यों ना की गई हों, भले ही इनको चोटें क्यों ना आई हों, भले ही किसान जो हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों ना दागे हों, लेकिन अभी भी इनका विरोध प्रदर्शन जो है उसमें केवल बैरिकेटिंग को तोड़ने के लिए किसान जो है जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ नोकझोंक हल्की होती जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसान शांतिपूर्वक ही दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी बैरिकेड हटाए गए, गाड़ियां हटाई गई और उसके बाद सीधे किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार हुए और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते नजर आए। बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है, लेकिन पुलिस लेकिन जिस तरह से ये रवैया देखने को मिल रहा है कि बल प्रयोग किया जा रहा है, लाठियां बांधी जा रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो माड़ी गल है सरकार दी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਲਾਠੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਵਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਤ ਕਰਨ, शांतमय ढंग ਨਾਲ सरकार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। बिल्कुल, देखिए एक गाड़ी और लगा दी गई है क्योंकि कुछ एक किसान आगे बढ़ गए और उसके बाद बाकी के जो किसान हैं उनको रोकने की कोशिश जो है वो दोबारा से की जा सकती है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं एक और गाड़ी जो है वो पुलिस की तरफ से इस रोड में लगाई जा रही है, इस रोड को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि ये रोड एक बार फिर से ब्लॉक हो सके और किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़ सके। लेकिन जिस तरह से पहले किसानों ने बैरिकेटिंग को तोड़ा, तो अभी ये गाड़ियां भी यहाँ से हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। एक बार फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से जो किसान है वो कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी लगा दी गई है, एक गाड़ी लगा के इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले एक जो ट्रक लगाया गया था वो ट्रक जिस तरह से हटाया गया और अब एक और गाड़ी, हरियाणा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको बीच सड़क में खड़ा कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी है जिसको बीच सड़क में खड़ा कर दिया गया है। ड्राइवर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को बीच सड़क में खड़ा करके साइड हो चुके हैं ताकि किसानों के जो दिल्ली बढ़ते काफिले हैं उनको रास्ते में ही रोका जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा जो किसान है वो दिल्ली ना पहुंच सके। हालांकि जो शुरुआती दौर में जो गाड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ती नजर आई, उसके बाद अब इनको रोकने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और रास्ता, क्योंकि ट्रैक्टर जो किसान का कह सकते हैं कि एक साथी माना जाता है, उस ट्रैक्टर को रोकना जो है वो मुश्किल है। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ जाता है ये ट्रैक्टर और बैरिकेडिंग पर चढ़कर ही ये ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हर संभव कोशिश की जा रही है, पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसान जो है दिल्ली की तरफ ना बढ़े। तो पहले इन्होंने ट्रक हटाया और अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है, हरियाणा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया है ताकि किसान आगे ना बढ़े। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं जिसमें किसान जो हैं वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की ताकि दिल्ली का घेराव कर सके और केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। जी
यार हेलो भाई, किसी और जगह का भी ले लो क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और फिर मेरा लाइव व्यू भी बंद हो सकता है। थोड़ा लाइव नहीं मिलना फिर बीच में नहीं मिलेगा अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई तो। 5 मिनट और दे देता हूँ। पीछे ला भाई, पीछे पीछे ला भाई, पीछे कर गड्डी कट जू ऊपर, कोई फायदा पीछे कर ले। चल बिल्कुल, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से रास्ता रोकने के लिए खड़ी की गई थी, अब उस गाड़ी को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। किसान जो हैं डटे हुए हैं, यूथ जो है वो डटा हुआ है ताकि दिल्ली का घेराव किया जाए, किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ सके। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से पहले बैरिकेटिंग तोड़ी गई, उसके बाद किसानों की तरफ से जो ट्रक यहाँ पर खड़े गए थे उनको साइड किया गया, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बीच सड़क खड़ा कर दिया गया। ड्राइवर जो है इस गाड़ी को बीच में ही खड़ा करके यहाँ से भाग गया और अब इसी गाड़ी को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़े। हर तरह की संभव कोशिश की जा रही है पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की, हरियाणा सरकार की, कि किसानों को दिल्ली ना जाने दिया जाए। उसी की तरफ से ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह के यहाँ पर प्रबंध किए गए थे, जहाँ किसानों के ऊपर पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें की गई और अब ये गाड़ियां लगाकर रोका जा रहा है। देखिए, अपडेट की बात करूं तो इस वक्त प्रशासन की तरफ से यहां पर एक और चीज देखने को मिली कि प्रशासन ने बीच सड़क में एक फायर ब्रिगेड खड़ा करने का काम किया था। फायर ब्रिगेड के माध्यम से एक बार फिर से रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी ताकि किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ ना बढ़े, किसानों के काफिले जो हैं वो आगे बढ़ते नजर ना आए। लेकिन यहाँ पर इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी पीछे कर दिया गया है। लंगर सेवा यानी लंगर भी साथ लेकर चल रहे हैं किसान, कि जहां पर भी रात को इनका ठहराव होगा वहीं पर इनको लंगर मिलेगा और उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इस सड़क के बीच में, यानी ये जो बैरिकेड पुलिस की तरफ से किए गए थे, रास्ता रोकने का प्रयास था, वहाँ पर किसान जो हैं वो ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए हैं। ह्यूमन चेन इसलिए बनाई गई है कि अब पुलिस जो है इस रास्ते को रोकने की कोशिश ना करे और जितने भी किसान पंजाब से आगे बढ़ रहे हैं वो सभी के सभी किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच कर सकें और दिल्ली का घेराव करके केंद्र की मोदी सरकार को चेता सकें कि आपने जो कानून पास किए हैं वो कानून जो हैं वो किसान हितैषी नहीं है। और इसका तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं होती, किसानों की इच्छा के अनुसार इन कानूनों में संशोधन नहीं किया जाता। जी
धन्यवाद।